भारत की शान हमारी देशभक्ति है अनमोल, हर एक सपना देश का सच करेंगे फिर बोल। भारत की शान हमारी देशभक्ति है अनमोल, हर एक सपना देश का सच करेंगे फिर बोल। सच करेंगे फिर बोल, बोल, बोल। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी पिछले ही दिनों आप लोगों ने हमारे एक एपिसोड में देखा था किस तरीके से अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से एक बाइकिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेडिशन का आयोजन किया गया था 3 मकसद के साथ में, जिनमें पहला था हर घर तिरंगा, तिरंगे का महत्व को जाने, तिरंगे के पीछे के बलिदान को जाने, और दूसरा था यूथ अवेयरनेस। हमारे आज के युवा अगर समझेंगे कि आर्मी की क्या अहमियत होती है, जवानों की क्या अहमियत होती है, सेना में जाना कितना ज़रूरी है, में सेना के देश के प्रति क्या रोल होता है और सेना देश के लिए क्या क्या करती है, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों को बताना। और तीसरा जो मकसद था वो था एक पेड़ माँ के नाम। हम सब जानते हैं कि आज हमारी पृथ्वी जो है किस तरीके से भीषण कठिनाइयों में है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से और दुनिया भर में फैल रहे प्रदूषण की वजह से। तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से इस बाइकिंग और ट्रैकिंग एक्सपेडिशन की शुरुआत हुई थी, जिसका आज यहाँ पे कुछ ही पल में समापन समारोह होने वाला है। और चीफ ऑफ स्टाफ श्री बिप्लब सर इनको जो है इनको संबोधित करेंगे और आज के इस अवसर पर यहाँ पे जो है तमाम जो बाइकर्स हैं इनको यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा। तो चलिए हम सीधे इस कार्यक्रम की ओर चलते हैं। सेना की पीठ पे चले, देश की शान को गाए, वीर जवानों की कहानी दिल से दुनिया को सुनाए। सीमाओं पे वीर है रखवाले, झंडे की लाज निभाए, सवालियां हर राह में आए, पोरों को हम सब टाए। भारत की शान हमारी देशभक्ति है अनमोल, हर एक सपना देश का सच करेंगे फिर बोल। मंजर वो मिट्टी का है जिसने दिया बलिदान, दिल से करते हमारे देश के लिए कुर्बान। Appease with immense pride and enthusiasm that I, Captain Ritik Trivedi, once again stand before you as the team leader of this remarkable biking and trekking expedition under the banner Har Ghar Tiranga Youth Awareness Program and Ek Ped Maa Ke Naam. Today as we gather here at this flagging ceremony, I am overwhelmed with the experiences we have shared and the impact we have created on the communities we visited. On 10th of August, after the flagging of ceremony by the Commander-in-Chief Andaman and Nicobar Command, in the duration of the journey of 8 days, we covered more than 700 kilometers. Not just on the road, but across the hearts of the people we met, spreading the message of patriotism and responsibilities towards our nation. Our journey began with visits to various colleges and villages around Port Blair, and we interacted with the youth, planted trees, and encouraged the young minds to join the armed forces. On 12th of August, the biking journey commenced, and after covering a distance of approximately 166 kilometers, we reached Rangat. The biking journey was filled with challenges, heavy rain, and muddy tracks, which made the ride tough, and at some stretches, especially from Barak and Kuranga, it seemed as if the terrain is practically unsuitable for two-wheelers. But our spirits remained high, and we carried on. It was truly an amazing feeling to be welcomed by villagers with young boys and girls standing on either side of the track, holding tricolors flying high, and we rolled our way. The evening was filled with activities including a friendly volleyball match, tree plantation, and a heartwarming interaction with the local community.
The next morning, we visited the government school at Rangat, where we encouraged the students to participate in Har Ghar Tiranga campaign and to plant trees. We also visited the local police station, interacted with them, and further distributed flags and sweets. On 30th of August, we continued our journey and reached Maya Bandar, where the Coast Guard representatives extended an enthusiastic welcome. The following day, we reached Shivpur, where we received a grand welcome by Team Kuhasa. We moved to Gram Panchayat Shivpur and our adopted village Shyamnagar, where the entire police staff, the village pradhan and the school children were eagerly waiting for us. We distributed flags, pamphlets and sweets to ensure that we had an extra layer of celebration on the 70th Independence Day celebration. The pinnacle of expedition was on 15th of August, when we ascended the Saddle Peak, and after trekking for approximately 4 hours, we reached on the top. Despite the muddy and slippery tracks, we reached atop Saddle Peak and proudly hosted our Tiranga. The sense of achievement we felt at that moment cannot be described merely by words. Our return journey on 16th and 17th of August was a time of reflection of these incredible experiences we had shared and the bond we had formed all along the way. As we are all flagged in today, I am filled with gratitude for the unwavering spirit and dedication to each member of our team. I would like to extend my profound gratitude to all the officers, the media, and every individual who contributed to make this expedition a resounding success. Now I would like to request Chief of Staff, Rear Admiral Biplam Uttar, Justice Seva Medal, Auxiliary Singh, to address this public hearing. Thank you. आज हम लोग फ्लैगिंग सेरेमनी कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन काफ़ी लोग करते हैं, और ये यूनिक इसीलिए है क्योंकि इसके साथ में हमने ना सिर्फ एक ट्रैकिंग भी किया, बट इसके साथ में 3 इवेंट्स किए। पहला हर घर तिरंगा, दूसरा यूथ अवेयरनेस, कम्युनिटी इंटरैक्शन, और तीसरा एक पेड़ वहां के नाम। जैसे आपने सुना, टीम लीडर ने बताया कि बहुत ही इवेंटफुल और इंटरेस्टिंग राइड का, इवेंट का इंटरैक्शन लोकल्स के साथ में, यूथ के साथ में बहुत अच्छा रहा। जो रिस्पांस हमें चाहिए था इस इवेंट से, हमें उस किस्म का इवेंट रिस्पांस मिला। कुछ जगह, कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस मीडिया के थ्रू नहीं पहुँच पा रहा है। इस बाइक एक्सपीडिशन में उस किस्म के विलेजेस में जाके लोगों को अवेयर करवाया, यूथ को समझ में आया कि फौज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। हर घर तिरंगा के बारे में पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इससे लोगों को पता चला कि हर घर तिरंगा हम लोग क्यों कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी इंटरैक्शन में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों किस्म के इंटरैक्शन किए गए। जैसे टीम लीडर ने बताया कि गेम्स हुए, और सिर्फ विलेजेस ही नहीं, पुलिस के साथ में, और कोस्ट गार्ड उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया। माया बंदर में, विजयपुर में और रंगत में एडी कोहासा उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट किया, विजयपुर, शिवपुर में। इस यूनिट का अपना विलेज, एडॉप्टेड विलेज रामनगर, वहाँ पे इंटरैक्शन हुआ, रेगुलर इंटरैक्शन होता है, और कभी भी जब हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो उनके साथ में इंटरैक्शन करते हैं। दूसरा पहलू इस बाइक एक्सपीडिशन का है कि ये एक ग्रुप पूरे आर्म फोर्सेस का था। सब लोग ने मिलजुल के पार्टिसिपेट किया। रास्ते में बारिश था, रास्ता खराब था, उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़ते गए, सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया, और मेन एम, जो ये 3 एम यहाँ पे लिखे हैं, उसको पूरा किया। और बहुत अच्छी बात है ये कि कोई मेजर एक्सीडेंट, इंसिडेंट
बाइक का फॉल्ट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इस पूरे इवेंट में। तो एट द एंड मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सारे ऑर्गेनाइजर्स को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और सीओ वाइनजीआर एंड एआरसी दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू। जय हिंद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने अपने जगह में सावधान में खड़ा हो जाएं और मेरे साथ 3 बार सांघे शक्ति और भारत माता की जयकारा करेंगे। संघे 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सेना की पीठ पे चले, देश की शान को गाए, वीर जवानों की कहानी दिल से दुनिया को सुनाए। सीमाओं पे वीर है रखवाले, झंडे की लाज निभाए। सवालियां हर राह में आए। तो अभी अभी आपने देखा किस तरीके से चीफ ऑफ स्टाफ श्री बिप्लब सर ने बताया कि जो बाइकिंग एंड ट्रैकिंग एक्सपेडिशन टूर था जो पोर्ट ब्लेयर से शुरू होकर पूरे नॉर्थ डिगलीपुर तक गया और रास्ते भर में इन तीनों मकसद को अपने दिल में बैठा के गए कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को बताना। साथ ही देश के जो युवा हैं उनको सेना के महत्व के बारे में बताना, सेना का जो देश के प्रति जो उनका फ़र्ज़ है उसके बारे में बताना और साथ में उनको ये प्रेरित करना कि वे भी जो है सेना से जुड़े और इसका सम्मान भी करें। और तीसरा जो था हर घर तिरंगा, तिरंगे के महत्व को, तिरंगे के पीछे की जो बलिदान है उन सब के बारे में लोगों को बताना और साथ ही इसकी महत्व को समझना। ये एक्सपेडिशन टूर सिर्फ एक्सपेडिशन टूर नहीं था, एक बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम भी था तमाम अंडमान निकोबार के वासियों के लिए, जो हमारे अंडमान निकोबार कमांड के सेनाओं ने किया है, जिनको हम बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं इस जागरूकता कार्यक्रम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वीपवासियों जहाँ जहाँ पर हमारे सेना के इन जवानों को देखा होगा उनसे कुछ सीखे होंगे और वे जो है अपने जीवन में इस पर अमल भी करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं अंडमान निकोबार कमांड का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को कवर करें और आप सबके समक्ष रखें, ताकि आपको भी इन तीनों पॉइंट्स के जो महत्व हैं उसको समझने का एक अवसर मिले। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यमीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद। मंजर वो